Good morning, everyone. Welcome in e-learning of social science. Students, today we will discuss about chapter number 11 in history, that is the political formations in the 18th century. What we are going to study here in this chapter, we will know who were the important kingmakers of that era. We will also discuss about the important independent kingdoms of our country, about the Marathas and about Peshwas. Children, our country has a very large history, and in this period, we are going to study about the later Mughals. So, Mughals के जाने के बाद means pre-Mughals. हमारा जो मुगल पीरियड था इंडिया का दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है ग्रेटर मुगल एंड लेटर मुगल्स. तो ग्रेटर मुगल वाज टिल औरंगजेब. औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स आए दे वर नॉट एज मच पावरफुल एज द एज स्टिल औरंगजेब. ठीक है. तो इसके बाद जो भी मुगल्स आए दे वर जस्ट वर्किंग लाइक अ पपेट. तो इन दिस टाइम पीरियड सैयद ब्रदर्स वर नोन एज द किंग मेकर्स. किंग मेकर्स का मतलब होता है जो किंग्स को बनाने वाले हो, जो किंग्स को चूज करने वाले हो. तो इन दिस टाइम पीरियड सैयद ब्रदर्स वर नोन एज द किंग मेकर्स. एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ लेटर मुगल्स बिकॉज दे वर एबल टू पुट द पीपल ऑफ देयर choice on the Mughal throne and remove one who displeased them. उनको जो लोग नाखुश करते थे या जिनसे वो खुश नहीं होते थे उनको वो किंगशिप से हटा भी देते थे. Sayyid brothers, namely Abdullah and Hussain Ali, were called the king makers that time. In the later Mughal period, because they made kings whomsoever they liked and pulled down those kings from power when the kings did not listen to the Sayyid brothers. Now, students, we will know about few important independent kingdoms of that time period. First of all, we will know the names of that kingdoms. Those were namely Awadh, Bengal, Hyderabad, Rajput kingdoms means Rajasthan, Punjab and Mysore. So first of all, we will know about Awadh. See this map of Awadh, red portion is showing the exact part of Awadh. In 1722, Muhammad Shah appointed Shadat Khan the governor of Awadh. As the zamindars of Awadh often refused to pay taxes on time, तो शादत खान ने क्या किया था? शादत खान ने इसको गवर्नर अपॉइंट किया था. तो शादत खान एंड हिज सक्सेसर्स वर्चुअली रूल्ड अवध. तो इस टाइम पीरियड पे शादत खान जो था उसने यहाँ पर फायदा उठाया. इसने रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया अवध में एंड वर्चुअली ही रूल्ड अवध एज इंडिपेंडेंट रूलर्स. they provided good administration here as you can see the picture of shadat khan here. so he was ruling here in awadh. This map is showing the exact location of Bengal. So students, Murshid Quli Khan was the governor of Bengal and अंडर मुगल्स. तो मुगल्स ने क्या किया था? बंगाल के एरिया में मुर्शीद कुली खान को यहाँ का गवर्नर बनाया था. यू कैन सी द इमेज ऑफ मुर्शिद कुली खां. उसने क्या किया, क्योंकि मुगल्स इस टाइम पीरियड पर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे थे, तो उसने इस चीज का फायदा उठाया एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीक सेंटर ही सीज पावर एंड बिगिन टू रूल इंडिपेंडेंटली. और इंडिपेंडेंटली रूल करने के बाद ही मेड मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल. In this map, you are seeing the exact location of Hyderabad. So, in Hyderabad, Chain Kulij Khan was a powerful noble in the court of Farrukh Shiar and Muhammad Shah. He was awarded the title of Nizamul Mulk or Asaf Jahan also. You can see the image of Chain Kulij Khan here you are seeing on the screen. So, he appointed as Mansabdar and granted them Jagirs without the permission of Mughal king. And Muhammad Shah was powerless to stop him and had to agree to all his decisions. तो इस टाइम पीरियड में द सक्सेसर ऑफ निजामुल मुल्क वर नोन एज द निजाम्स और चेन कुली खान जो था ही वाज सीइंग हैदराबाद.
This map is showing the exact location of Rajput rulers. So most of the Rajput kings since the reign of Akbar, as I have told you in last chapters, in chapter number 6 हम लोगों ने पढ़ा था about the Rajput ruling and Akbar policy. तो अकबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन तक तो राजपूत पॉलिसी बहुत अच्छी चली, लेकिन औरंगजेब से कुछ हद तक इनके टर्म्स खराब हो गए थे. बट द मोस्ट enlightened Rajput ruler of this period was Savai Raja Jai Singh. As you are seeing here the picture of Savai Raja Jai Singh of Amber. He encouraged the teaching and learning of science, and also he founded the city of Jaipur. Here in this map is showing the exact location of Punjab. तो बेटा पंजाब में जो एरिया पंजाब का था, यहाँ इस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा संभाला हुआ था, एंड ही ऑर्गेनाइज द सिख इन अ मिलिट्री ग्रुप. तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मिलिट्री का ग्रुप संभाला हुआ था, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गुरु गोविंद सिंह हेयर. तो इन्होंने जो मिलिट्री संभाली थी या बनाई थी, दैट वाज नोन एज खालसा, और उसको मानने वाले लोगों को खालसा पंथीज बोला जाता था. He inspired his soldiers and they used to speak the slogan. जो स्लोगन था उनका, दैट वाज वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह. इसका मतलब है, इट मीन्स दैट खालसा बिलोंग टू गॉड एंड ऑल विक्ट्रीज ऑफ खालसा आर द विक्ट्रीज ऑफ गॉड. हेयर इज द मैप ऑफ मैसूर. तो मैसूर में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. वन इज हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना जरूर होगा बेटा. दीज बोथ आर रिलेटेड विद मैसूर. मैसूर को इन लोगों ने बहुत ही अच्छा बना दिया था, एंड दे मेड मैसूर एज वेरी मच पावरफुल. हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच टीपू सुल्तान और हैदर अली जो थे, दे वर वेरी मच पावरफुल इन मैसूर, और इनके और अंग्रेजों के बीच में एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. तो फर्स्ट वॉर जो था हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने उन लोगों को हरा दिया था. बट इन द लास्ट वॉर, इन फोर्थ वॉर, टीपू सुल्तान उसमें लड़ते हुए मारे गए थे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मराठास. बेटा मराठा पावर बहुत ज्यादा पावरफुल थी इस टाइम पीरियड में. एज यू कैन सी दिस इमेज जो आपके स्क्रीन पर है, इस इमेज में शो कर रहा है कि वंस इट वाज द टाइम पीरियड जब मराठास का जो अधिकार था वो हमारी कंट्री के बहुत बड़े पार्ट पर था. तो मराठास में हेड किसको माना जाता है? वी विल डिस्कस अबाउट शिवाजी. ठीक है, तो शिवाजी, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शिवाजी हियर. शिवाजी भोसले was known as द फाउंडर ऑफ मराठा. क्योंकि हम इनको, वैसे तो मराठास पहले से भी थे, लेकिन शिवाजी का नाम मराठास के नाम पर सबसे पहले जाना जाता है या माना जाता है. तो ही वॉज रिलेटेड फ्रॉम बीजापुर. उनकी मदर जो थी जीजाबाई था नाम उनका. एंड जो उनकी मदर थी, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मदर से ही बहुत कुछ सीखा था. तो अपने अर्ली टाइम पीरियड में ही उन्होंने एक वी कैन से कि एक ग्रुप टाइप का या फिर एक छोटा सा जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है, ये एक ग्रुप टाइप का बना लिया था. जो छोटी सी इनकी आर्मी थी वो गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानी जाती है, और ये अचानक ही अटैक किया करते थे. अकॉर्डिंग टू दिस, उन्होंने जो अटैक किया था, वंस औरंगजेब कंसीडर्ड शिवाजी अ ग्रेट थ्रेट. तो शिवाजी जो थे उनके शुरू से ही वर्क ऐसे रहे हैं कि उनसे सबको खतरा लगने लग गया था. तो जब औरंगजेब को लगा कि उनको शिवाजी से खतरा है, तो इन 1663 ही सेंट शाइस्ता खान टू कैप्चर हिम. और उस टाइम पीरियड पे शिवाजी ने क्या किया? वन नाइट शिवाजी विद अ फ्यू सोल्जर्स एंटर्ड इन मुगल कैंप एंड बाउंडेड हिम. तो इस पीरियड में औरंगजेब को और ज्यादा फील होने लग गया कि वो शिवाजी को हरा नहीं पाएगा, तो उसने बहुत ही चालाकी से शिवाजी को अपने कंट्रोल में कर लिया. औरंगजेब के साथ शिवाजी के हमेशा से ही बैटल्स होते रहे थे. तो उसने क्या किया? उसने शिवाजी को कैप्चर कर लिया चालाकी से. और जब शिवाजी बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो एट दैट टाइम पीरियड शिवाजी को सरेंडर करना पड़ गया. उन्होंने अपनी 23 फोर्ट्स भी हार गए उसके टाइम पर, लेकिन बहुत ही चालाकी से शिवाजी भी उसके अंडर से निकल के भाग गए. और वहां से निकलने के बाद इन 1670 शिवाजी renewed few hostilities with the Mughals, and he re-added like a Surat,
सूरत में वो गए और वहां के सूरत की कुछ एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया। एंड इन 1674 शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ द किंग एंड टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति शिवाजी। बेटा शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान थे, जैसे कि मैंने अकबर में नवरत्न आपको बताए थे, उसी तरह से शिवाजी के टाइम पीरियड में उन्होंने अपने दरबार में अष्ट प्रधान रखे हुए थे। तो दीज अष्ट प्रधान में जो मेन हेड पोस्ट थे, दोज वर पेशवा, सेनापति, न्यायाधीश, मजूमदार, पंत सचिव, मंत्री, दंडाध्यक्ष। तो इनका जो काम था वो भी था, जैसे कि पेशवा जो थे वो ही वाज द हेड ऑफ काउंसिल, सेनापति कमांडर के आर्मी के चीफ हुआ करते थे, एंड न्यायाधीश का काम था जस्टिस करना, मजूमदार का काम था फाइनेंशियल वर्क को संभालना, पंच सचिव का काम वो एक सेक्रेटरी की तरह काम करते थे। इसी तरह से मंत्री जो हुआ करते थे ही वाज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दंडाध्यक्ष का काम होता था रिलीजियस मैटर्स पर लोगों को दंड देना यानी न्याय करना। Shivaji's administration was very much powerful, and in his provincial administration, his administration was divided into 4 provinces, and each province was under the head called Mamlatar and वाइसरॉय। जो वाइसरॉय हुआ करता था उसके अंडर में हुआ करता था। चीफ ऑफ विलेज वाज कॉल्ड दक्षापंत और पटेल। तो द हेड यूज्ड टू रन द अफेयर्स ऑफ विलेज विद द हेल्प ऑफ विलेज पंचायत। तो यहां पर इनका रिवेन्यू सिस्टम किस तरह से हुआ करता था? शिवाजी का जो रिवेन्यू सिस्टम था वो दो तरह से था, उनके दो नाम थे, चौथ और सरदेशमुख। चौथ का मतलब होता था 1/4 ऑफ द लैंड रिवेन्यू एंड सरदेशमुख वाज एन एडिशनल 1/10 ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो जब कभी भी ये दो नाम आपके सामने आते हैं, चौथ और सरदेशमुख रिवेन्यू, तो इट इज रिलेटेड विथ शिवाजी। स्टूडेंट्स, शिवाजी का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज आल्सो वेरी मच पावरफुल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने बचपन से ही अपनी छोटी सी मिलिट्री बनाई थी, तो जब वो बड़े हुए और जब वो एक एज पे आए तो अपने टाइम पीरियड पे इनकी मिलिट्री बहुत पावरफुल हुआ करती थी। हिज सोल्जर्स वर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली डिसिप्लिन्ड, and in addition Shivaji controlled many forts. Special officers were appointed to look after these forts. तो अब शिवाजी का जो टाइम पीरियड था आफ्टर शिवाजी, हिज फॉलोअर्स वर वेरी मच वीक। एक्चुअली वी कांट से कि शिवाजी की तरह ही उनके फॉलोअर्स भी उनकी तरह ही थे, तो नो, शिवाजी के जो फॉलोअर्स थे वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जितने कि शिवाजी, दे वर मच वीक, एंड इन द 18th century पावर पास्ड इन द हैंड्स ऑफ Peshwas. So students, first of all know who were the Peshwas. बेटा the Peshwas were the prime minister of the मराठा रूल। तो जो उस टाइम मराठा रूल चल रहा था ना, उस टाइम पेशवा की एक पोस्ट हुआ करती थी जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। बालाजी द फर्स्ट ऑफ द पेशवा was an expert administrator and revenue controller. He got back from the Mughals and the territories ruled by Shivaji and the right टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुख की, जो मैंने अभी आपको दोनों रिवेन्यू बताए ना, इनको कलेक्ट करने का इन्होंने पूरा हिस्सा जो था, स्पेशली दक्कन का जो एरिया था, इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो फ्रॉम 1730 टू 1761 पेशवा कंट्रोल द मराठा एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इज बालाजी विश्वनाथ। Balaji Vishwanath took advantage of weakness of later Mughals and captured more territory. He forced Farrukhsiyar to return all the territories which had been under Shivaji. After him, that is Baji Rao from 1720 to 1740. Baji Rao had captured so many territories. ठीक है, जैसे कि मालवा, साउदर्न गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, एंड टुवर्ड्स द साउथ ही डिफीटेड द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वन प्रोविंस ऑफ Dakkan. After him, Balaji Bajirao, who was from 1740 to 1761. He shifted the capital from Satara to Pune, and during his reign, the Maratha armies reached as far as Punjab, Rajasthan in the north, and Bengal and Orissa in the east. The kingdom of Mysore and Hyderabad were forced to hand over territories and pay tribute.
अंडर बालाजी बाजीराव मराठा पावर वॉज एट इट्स ग्रेटेस्ट। तो इनके टाइम पीरियड पे जो मराठा पावर था, पेशवा मराठा, जो इनका जो पावर था वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका था। इनका बैटल हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ। एज यू कैन सी द लास्ट इमेज, दैट इज द इमेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली, जिनके साथ बैटल हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। So students, in the third battle of Panipat, Maratha became very weak after their defeat at the hands of Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat. And the various Maratha chiefs broke away and started ruling over small areas. तो इन small areas में जब इन्होंने रूल करना शुरू किया, तो मराठा पावर, जो मैंने अभी आपको सबसे फर्स्ट इमेज दिखाया था मराठास का, ये पावर जो थी पूरी तरह से वीक होके छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड हो गई। स्टूडेंट्स, ये जब छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड हो गई तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस टाइम हमारी कंट्री में ट्रेडिंग के साथ साथ रूलिंग की तरफ बढ़ चुके थे। अब किस तरह से इन्होंने रूलिंग आगे शुरू की, दीज ऑल यू विल कंटिन्यू इन योर 8th क्लास। So students, I hope this video will be useful for you. Thank you.